شمالی وزیرستان میں شہید لیفٹیننٹ حسن اشرف شہید کی نماز جنازہ لاہور گیریجن میں ادا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر، اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور شہداء کے لواحقین کی شرکت۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا شہید کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ شہداء ملکی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ خیبر پختونخوا میں 15 خارجی جہنم واصل سیکورٹی فورسز کی 2 مختلف کامیاب کارروائیاں۔ ڈی آئی خان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کے دوران خارجی سرغنہ سمیت 9 دہشت گرد ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں 6 خارجی مارے گئے۔ ہلاک خارجی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کی کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کی ستائش۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 1 آفیسر سمیت 4 جوان شہید۔ لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف، نائب صوبیدار محمد بلال، سپاہی فرحت اللہ اور سپاہی ہمت خان مادر وطن پر قربان۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ پوری قوم کو شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر مملکت کا شہداء کو شاندار خراج عقیدت۔ سموگ میں کمی، زیادہ پیداوار، کاشتکار خوشحال۔ پنجاب میں سپر سیڈرز کے استعمال سے شاندار نتائج۔ 1000 کاشتکاروں نے 6 ماہ میں 57 کروڑ 95 لاکھ روپے کما لیے۔ صوبے بھر میں گندم کی کاشت میں سپر سیڈرز کے ذریعے 330 ٹن بیج کی بچت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سپر سیڈرز کے نتائج پر اظہار اطمینان۔ سپر سیڈرز سے زراعت میں جدت کا خواب حقیقت بن رہا ہے۔ ہمارا مشن کسانوں کی خوشحالی، زراعت میں جدت اور ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب۔ رمضان المبارک میں چینی کی قیمت 130 روپے فی کلو مقرر کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اجلاس۔ چینی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے میونسپل سطح پر سٹالز لگانے کا فیصلہ۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن اور صوبائی انتظامیہ چینی کی دستیابی یقینی بنائیں۔ ایک شناختی کارڈ پر 5 کلو گرام چینی کی خریداری کی اجازت ہوگی۔ پنجاب حکومت سموگ اور فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے کوشاں۔ لاہور میں 978 ایکڑ پر قدرتی جنگل اگانے کی مہم کا آغاز۔ 6,34,000 درخت لگانے کا ہدف مقرر۔ 144 ایکڑ پر 1,05,000 درخت لگائے جا چکے۔ دریائے راوی کے کنارے وسیع گرین بیلٹ سے صاف ہوا کی فراہمی یقینی ہو سکے گی۔ دھوئیں کے شہر کو آکسیجن ہب میں بدلنا مریم نواز کا مشن ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب۔ گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش۔ غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد نے گلگت بلتستان کا رخ کیا۔ گلگت بلتستان کے عوام کو سستی گندم فراہم کرنے کے لیے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ معدنیات کے شعبے میں اصلاحات کی گئی ہیں۔ قیمتی پتھروں اور معدنیات کی کان کنی کے لیے مقامی افراد اور کمپنیوں کو ترجیح دیں گے۔ لینڈ ریفارمز کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان کی نیوز کانفرنس۔ ایس آئی ایف سی کے گرین پاکستان انیشیٹو کے ذریعے ملکی ترقی کی راہیں ہموار۔ زرعی انقلاب کا آغاز، جدید مشینری سے کاشتکاری، روایتی طریقوں کی نسبت پانی کی 80% بچت ممکن۔ 10 لاکھ ایکڑ زمین آباد، کھاد اور دیگر زرعی سہولتیں کسان تک پہنچانے کا انقلابی منصوبہ۔ 17,000 ایکڑ زمین کے قابل کاشت ہونے سے ملک کی معیشت کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ چولستان میں ڈرون اور جدید مشینری سے بنجر زمینیں آباد، تحفظ خوراک میں نمایاں بہتری متوقع۔ ملک کو دیوالیہ کرنے کی سازشیں ناکام ہو گئی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات جاری رکھیں گے۔ اقتصادی شعبے میں بہتر اشاریے حکومتی کارکردگی کا ثبوت ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد سے رونقیں دوبارہ ہو گئیں۔ پی سی بی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھرپور انتظامات کیے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ اور رکن قومی اسمبلی کھیل داس کو حصہ آنے کی میڈیا سے گفتگو۔
क्रिकेट का जुनून, पाकिस्तान पूरी दुनिया से शायकीन की तवज्जो का मरकज। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में सिर्फ 3 रोज बाकी, जोश व खरोश उरूज पर। मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इवेंट की रिपोर्टिंग, तज्जिए और तबसरे देखिए पीटीवी न्यूज पर। धड़के दिल जोर से धड़के देखो क्या होगा, कुछ भी हो सकता खेल में। कौन हारे कौन जीते कोई भी ना जाने, कुछ भी हो सकता खेल में। चैंपियंस ट्रॉफी की खुसूसी तकरीब आज लाहौर में होगी। आईसीसी और पीसीबी के ओहदेदार शिरकत करेंगे। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी तकरीब का हिस्सा। आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना भी पेश करेंगे। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का छठा मरहला, मजीद 3 इसराइली रिहा, 369 फलस्तीनी कैदी भी आज़ाद। रिहाई पाने वाले 4 फलस्तीनी तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल। जंगबंदी माहदे के दूसरे मरहले में इसराइल और हमास के मुज़ाकरात अगले हफ्ते शुरू होने का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 6 रोज़ा दौरा मशरिक़ वस्ता पर तेल अवीव पहुँच गए। ट्रंप के गज़ा मंसूबे के खिलाफ लंदन, डबलिन और यमन में हज़ारों अफराद के एहतजाजी मुज़ाहरे। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 अफराद हलाक। लुकमा अजल बनने वालों में 3 बच्चे और 10 खवातीन भी शामिल। हजारों की तादाद में हिंदू यात्री प्रयागराज में महाकुंभ मेले में शिरकत के लिए जा रहे थे। वाकया हुकूमती बद इंतजामी के बायस पेश आया, भारतीय मीडिया। अमरीका से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी, मजीद 119 भारतीय शहरी बेदखल। दूसरा अमरीकी फौजी जहाज अमृतसर पहुंच गया। गैर कानूनी तारकीन वतन को हथकड़ियां और बेड़ियां लगाने पर भारतीय शहरी नाला। सोशल मीडिया पर भारत की सिफारतकारी और मोदी के दौरा अमरीका पर सवालात उठने लगे। वजीर आला भारतीय पंजाब भगवंत मान की मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में 20वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली इवेंट इख्तितामी मरहले में दाखिल। रेस में जीप रैली के फाइनल मुकाबले जारी। दिफाई चैंपियन जैन महमूद की गाड़ी सबसे पहले फ्लैग ऑफ हुई। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल इत्तेहाद की अल वाहदा को शिकस्त। मक्का में खेले गए मैच में अल इत्तेहाद ने अल वाहदा को 1 के मुकाबले में 4 गोल से मात दी। पॉइंट्स टेबल पर अल इत्तेहाद की टीम 52 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। अल हिलाल 48 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि अल नसर 44 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। और कतर में WTA 1000 दोहा ओपन, अमेरिका की अमंदा एनिसोमोवा ने टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में एनिसोमोवा ने लिथुआनिया की जेलिना ओस्टापेंको को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। अमंदा एनिसोमोवा के करियर का ये पहला WTA 1000 एजाज है। Champion Amanda Anisimova. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक। खेल और खिलाड़ी की बात करने के लिए मैं आपके साथ हूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ शदीद फायरिंग के तबादले में जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट हसन अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर गैरिजन में अदा कर दी गई।
नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शिरकत की। वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुक्काम, शहदा के लवाहिकीन ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहदा मुल्क की दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 अलग कार्रवाइयों में 15 खारजी दहशत गर्दों को हलाक कर दिया, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ समेत 4 जवानों ने भी मादरे वतन पर अपनी जान निछावर कर दी। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके हथाला में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया, जहां ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में सरगना समेत 9 ख्वारिज हलाक हो गए। मारे जाने वालों में खारजी रिंग लीडर फरमान उर्फ साकिब, खारजी अमानुल्लाह उर्फ तूरी, खारजी सईद उर्फ लियाकत और खारजी बिलाल शामिल हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया। दहशत गर्दों के खिलाफ शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। 21 साला शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ का ताल्लुक लाहौर से है। दीगर शहीद एहलकारों में नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्लाह और सिपाही हिम्मत खान शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने KPK में फितनल ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों की तारीफ की है। उन्होंने डेरा इस्माइल खान और शिमाली वज़ीरिस्तान में अलग-अलग ऑपरेशंस में 15 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने कार्रवाई के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ समेत 4 जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दहशत गर्दों के मुल्क का अमन खराब करने के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को अपने शुहदा और उनके अहल खाना पर फख्र है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से बरतानवी वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी और रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि बरतानिया में बड़ी तादाद में मुक़ीम पाकिस्तानी बरादरी का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार है। मोहम्मद इसहाक़ डार ने पाक बरतानिया ताल्लुकात में यास्मीन कुरैशी के किरदार की तारीफ की। स्मोक में कमी, ज़्यादा पैदावार और काश्तकार खुशहाल। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज बरामद हुए। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सूबे भर में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई और रिवायती तरीक़ाकार के मुकाबले में 18,70,000 लीटर डीजल का कम इस्तेमाल हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुपर सीडर्स के नताइज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज़ है, ज़राअत में मज़ीद इनकलाबी इक़दामात करेंगे। उन्होंने कहा कि सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना अज़्म है। पैदावारी लागत में कमी और ज़्यादा मुनाफा हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। 93% काश्तकारों ने सुपर सीडर से काश्त पर गंदम के उगाव को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए सुपर सीडर्स का इस्तेमाल उम्दा नताइज का हामिल है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान आवाम को 130 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से चीनी फ्राहम की जाएगी, जिसके लिए मुल्क भर में म्यूनसिपल कमेटी की सतह पर स्टॉल्स लगाए जाएंगे। ये फैसला वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत लाहौर में होने वाले जायज़ा इजलास में किया गया। इजलास में पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। राना तनवीर हुसैन ने बताया कि एक शिनाख्ती कार्ड पर 5 किलोग्राम तक चीनी दी जाएगी, जबकि चीनी की पैकिंग 1 किलो और 2 किलो में होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान से सऊदी अरब में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और मालियाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अफ्रीका ने इक़्तिसादी ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा किया। मुलाकात के दौरान बुनियादी ढांचे, तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करने पर गौर किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान सऊदी अरब ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी के 8वें इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब का दौरा किया। दौरे के दौरान जनरल साहिर शमशाद ने सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रबेली से मुलाकात की और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी उमूर समेत दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान सऊदी अरब मुश्तरका अस्करी ताउन कमेटी के 8वें इजलास की सदारत जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जनरल फयाज बिन हमीद अल रबेली,
सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने की। इजलास में मुसल्लह अफवाज के दरमियान जारी ताउन का भी जायजा लिया गया। अस्करी क़यादत ने दोनों बरादर ममालिक के माबैन मौजूदा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की बहरी अफवाज के माबैन बहरी मश्क नसीमुल बहर शिमाली बहरा अरब में इख्तिताम पजीर हो गई। मश्क का इख्तिताम शिमाली बहरा अरब में फायर पावर के मुजाहरे के साथ हुआ। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल अमीर अशरफ ने मेहमान खुसूसी कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज के साथ मिसाइल फायरिंग का मुजाहरा देखा। पाक बहरी और सऊदी नेवल फोर्सेज के जहाज़ों ने ज़मीन और फ़ज़ा में हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल फायर किए। मिसाइलों ने अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाते हुए ऑपरेशनल तैयारी और हरबी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। यह मश्क स्ट्रेटजिक शराकतदारी और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोनों बहरी अफवाज के अज़्म की अक्कास है। हुकूमत पंजाब ने स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी के मुस्तकिल हल के लिए लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल उगाने की मुहिम का आगाज़ किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए दरियाए रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम शुरू हो गया है। अहले लाहौर को ऑक्सीजन की फराहमी के लिए 144 एकड़ पर 1,05,000 दरख्त लगाए जा चुके हैं। लाहौर की फ़ज़ा में ताजगी का मिशन 6,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। धुएं के शहर को ऑक्सीजन हब में बदलना मरियम नवाज शरीफ का मिशन है। पंजाब हुकूमत का ग्रीन इनकलाब जारी रहेगा। फ़ज़ाई आलूदगी और शदीद गर्मी के खात्मे के लिए लाहौर में शजरकारी मुहिम नागुज़ीर है। दरियाए रावी के किनारे 978 एकड़ पर सब्ज़ बेल्ट शहरियों को ताज़ा ऑक्सीजन और साफ फ़ज़ा फराहम करेगी। लाहौर को सरसब्ज़ और माहौलियाती आलूदगी से पाक करना वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान कहते हैं कि इलाके में सयाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम किए गए हैं। माजी के मुकाबले में बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रही है। रिपोर्ट करेंगे फ़हद जावेद। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत ने इलाके की अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में लैंड रिफॉर्म के हवाले से कानून साजी की जा रही है। हमने ये फैसला किया कि जो चैनल से नीचे ज़मीन है, जो दासिस है, जो गैर आबाद ज़मीन है, वो आवाम की मलकियत होगा। और उसके अंदर सिकरदू और गिलगित में कुछ लोगों ने अपने अंदाज में तकसीम करके कब्जा किया, लेकिन हुकूमत ने उनको अलॉटमेंट नहीं दिया, उनको मलकियत नहीं दिया। अब उनसे वो उठाकर आवाम उस गाँव के जो बाशिंदे हैं उसमें बराबर तकसीम होंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि इलाके की अवाम को सस्ती गंदम फराहम करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। हमारे साथ इस साल जितना तकरीबन 6.5 अरब रुपए हमें सब्सिडी में बढ़ाया और गंदम हमें 12.5 लाख बोरी मिलते थे, इस साल 15 लाख बोरी आएगा। हमें 3 किलो पर नफरी से बढ़ा के अभी हम 7 किलो दे रहे हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा कि मादनियात के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। कीमती पत्थरों और मादनियात की कानकनी के लिए मकामी अफराद और कंपनियों को तरजीह दी जाएगी। फ़हद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जरिए तरक्की की राहें हमवार हो रही हैं। इस इकदाम के जरिए ज़राई इनकलाब का आगाज हो गया है। इस अहम मौके पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की जानिब से मुस्बत ख्यालात का इज़हार किया गया है। उन्होंने मंसूबे को SIFC के तहत 10 लाख एकड़ ज़मीन आबाद, खाद और दीगर ज़रूरी सहूलियात किसान तक पहुँचाने का इनकलाबी इक़दाम करार दिया है। यहाँ पे ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत गैर आबाद रकबों को आबाद किया जा रहा है। जदीद मशीनरी इस वक्त जहाँ पे दिखाई जा रही है। इसी तरीके से अब जब आम काश्तकार जो रिवायती तरीके से काश्तकारी कर रहा है, वो जब ये जदीद काश्तकारी देखेगा, ड्रिप इरीगेशन, पेवर्ट सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम को देख के वो अपनाएगा, अपना 80% वो पानी बचाएगा, क्योंकि हमारा अगले आने वाला सबसे बड़ा मसला वो पानी का है। I think it is a wonderful initiative that has been taken by SIFC. कोई about 100,000 acres यहाँ पे इन्होंने कल्टिवेट किए हैं। प्रोडक्ट फार्मर के डोर स्टेप पे मिलेगी। साडे इस बैकवर्ड इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। हर बंदे नूं चाहिदा है इस मनसूबे के तहत रकबा जिन्ना को 1000 एकड़ ला सकदा, कोई 2 ब्लॉक ला सकदा, वो ले लवे। एक कल नूं अपॉर्चुनिटी लोकां नूं नहीं मिलनी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जरिए जो ये इलाका चोलिस्तान में आबाद किया जा रहा है, इससे पाकिस्तान में एक तो ज़राअत की तरक्की में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, फूड सिक्योरिटी के तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि हम अपनी तमाम ज़रूरियात मकामी तौर पर पूरी करेंगे। इस तरह से जो हमारी ये बंजर ज़मीनें हैं, ये नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए यहाँ पे ड्रोन की सर्विसेज हैं, यहाँ पे मशीनरी की सर्विसेज हैं, यहाँ पे ज़मींदारों को उनके
दहलीज पे तमाम चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं। ये ग्रीन एग्री मॉल के ज़रिए ग्रीन एग्री मॉल पे हम पाकिस्तान के यहाँ से तमाम जो फार्मर्स की ज़रूरियात हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड हैं, ज़रूरी अद्वियात हैं या फर्टिलाइज़र है या उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या उनकी डेवलपमेंट की ज़रूरत है या मशीनरी की ज़रूरत है, हर चीज़ हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। ये वो चोलिस्तान है जो जहाँ पे सिर्फ रेत और मिट्टी हुआ करती थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नीचे यहाँ हम एक पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को टर्न अराउंड करने की सुबह यहाँ से रोशन होने लगी है। It is always so heartening to interact with the youth of the country, and when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army, inshallah, will not fall. We fight like comrades. हमें फौज में यही तो मज़ा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह। हमारे लिए जो है ये जो पाकिस्तानियत है ना, वो हमारे लिए बस वही है। वी ऑल आर पाकिस्तानी एंड वी लव दैट। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम व्हिच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यस्अऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सजा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, या अपनी जमीन से उनको जो है दरबदर कर दो। ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अजाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। ये है वो जिसके पीछे जो है वो आर्मी आज भी फितना अल ख्वारिज से जो है वो डेली बेसिस के ऊपर लड़ रही है। वी डोंट एग्री विद देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी उसने, वेदर शी इज अ मदर और शी इज अ वाइफ और शी इज अ सिस्टर, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को। तो हु आर यू टू टेक इट अवे टुडे? हु आर यू? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. It is always so heartening to interact with the youth of the country, and when we interact with you, honestly, that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army, inshallah, will not fall. We fight like comrades. हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, बस साथियों की तरह। हमारे लिए जो है ये जो पाकिस्तानियत है ना, वो हमारे लिए बस वही है। वी ऑल आर पाकिस्तानी
एंड वी लव दैट। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम व्हिच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यसाऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सजा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफऊ मिनल अर्ज़, या अपनी जमीन से उनको जो है दर बदर कर दो। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अजाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ली अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़ालमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। ये है वो जिसके पीछे जो है वो आर्मी आज भी फितना अल ख्वारिज से जो है वो डेली बेसिस के ऊपर लड़ रही है। वी डोंट एग्री विद देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजन। इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी उसने, वेदर शी इज अ मदर और शी इज अ वाइफ और शी इज अ सिस्टर, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को। तो हु आर यू टू टेक इट अवे टुडे? हु आर यू? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। उनका कहना है कि मुल्क के नौजवानों से गुफ्तगू मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है। आर्मी चीफ ने कहा कि जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। इसी पर बात करेंगे। राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। राना शहजाद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस गुफ्तगू के हवाले से आपके पास? जी हुमा मलक, ये जो आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की गुफ्तगू है, ये इन्होंने 12 फरवरी को पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ जामिया से आने वाले तलबा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू की, और आज ISPR की जानब से इस अहम गुफ्तगू का 3 मिनट 10 सेकंड का जो क्लिप अभी हमने अपने नाज़रीन को सुनवाया है। इस गुफ्तगू के जो ऑनर हुआ है, 3 अहम नुकात हैं। ख़ास तौर पर दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम के किरदार के हवाले से आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की। इसके अलावा फितना ख्वारिज जो है उसके हवाले से आर्मी चीफ ने गुफ्तगू करते हुए कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात पढ़कर सुनाई और उनका तर्जमा पढ़कर सुनाया। और जो तीसरी जो बड़ी अहम बात है कि जो नौजवान नस्ल और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन को इस्लाम ने जो मकाम अता किया है, उस हवाले से आर्मी चीफ की गुफ्तगू नहायत जो है वो पुरमगज़ रही। इस मौका पर आर्मी चीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस और नौजवानों का पाक फौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता है। मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और इंशाल्लाह रहेगी। हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फख्र है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के आइन का आगाज भी इन्नल हुक्म इलल्लाह, हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, से होता है, और ये फितना ख्वारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हम कभी भी फितना ख्वारिज को अपनी फरसुदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे, और गजूर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गजूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि आज नौजवान नस्ल से मेरे मुखातब होने का वाज़े जो मकसद ये है कि हमें अपनी नौजवान नस्ल और अपने रोशन मुस्तकबिल पर मुकम्मल यकीन है, और इसीलिए मैं अपनी नौजवान नस्ल से मुखातब हूँ। जी हुमा। अच्छा राना शहजाद, ये भी बताइएगा, बड़ी खूबसूरत बात की आर्मी चीफ ने कि रियासत के सामने सरेंडर करने वाले सिर्फ जो हैं वो रहम की तवक्को रख सकते हैं।
جی یہ دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے جیسے کہ بلوچستان میں مختلف کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں انہوں نے قومی دھارے میں شمولیت کی اور اس حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرین پر ایکسکلوسیو ہم نے ان کے انٹرویوز بھی آن ایئر کیے. تو یہ تو ہمیشہ ریاست کی پالیسی ہے کہ جو ریاست کی رٹ کو تسلیم کرتا ہے ریاست ہمیشہ ایک ماں کی طرح ان کو گلے لگاتی ہے اور ہمیشہ ریاست ان کی فلاح کا کام کرتی ہے. اور یہی آج بھی جو آرمی چیف کا جو بیان ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو بھی ریاست کی ریٹ کو ریاست کی حاکمیت کو تسلیم کرے گا ریاست اس کو ہمیشہ گلے لگائے گی اور اس کی فلاح و بہبود کرے گی. اور اس موقع پر آرمی چیف نے جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو بھی یہ وارن کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان اگر کسی نے جو دراڑ ڈالنے کی کوشش کی وہ ہمیشہ ناکام رہی ہے اور رہے گی. اور پاکستان کی مسلح افواج اور عوام ہمیشہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہیں اور غیر متزلزل حمایت رکھتے ہیں ایک دوسرے کی. اس حوالے سے دشمن کو ہمیشہ منہ کی کھانا پڑے گی. جی اچھا رانا شہزاد، اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے نوجوانوں اور قیادت کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سازشیں پیدا کی جاتی ہیں، اس طرح کی کوشش آرمی چیف کی گفتگو 1-to-1 انٹریکشن یہ واضح پیغام بھی ہے نوجوانوں کے لیے. کتنا حوصلہ افزا ہے یہ؟ رضوان بڑی اہم بات کی آپ نے. یہ دیکھیں کہ یہ ہائیسٹ فورم اب ہماری عسکری قیادت کا ہے اور اس کا نوجوانوں سے براہ راست انٹریکٹ کرنے کا یہ جو بڑا ہی مثبت اور نہایت اچھا اقدام ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے وہ نوجوانوں کے ویژن کو، نوجوانوں کی رائے کو کتنی اہمیت دیتی ہے اور اسی لیے وہ براہ راست نوجوانوں سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کی رائے سن رہے ہیں، ان کے مسائل سن رہے ہیں. اور ایک جو کہ دشمن نے ایک بہت ہی کمزور گھٹیا قسم کی نوجوانوں کے ذہن کو جو ہے مسموم کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اس کو بھی جو ہے ریڈ کیا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل جو صحیح راستہ ہے دین، شریعت اور پاکستان کے آئین کے مطابق وہی صحیح راستہ ہے اور جو باقی گمراہ کن ایجنڈا پروپیگنڈا ہے اس سے آپ کو بچنا چاہیے بلکہ کاؤنٹر پروپیگنڈا کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت کا نوجوان نسل سے براہ راست انٹریکٹ کرنا ایک نہایت احسن اقدام ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی متعدد بار نوجوان نسل سے براہ راست مخاطب ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ نہایت احسن ہے. جی رضوان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا رانا شہزاد السلام. آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے طلباء سے خصوصی گفتگو کی ہے اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں سے گفتگو کرنا میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے. جب تک قوم خصوصاً نوجوان ہمارے ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے پاکستانیت سب سے اہم ہے. ہم فتنہ الخوارج کے فسادیوں سے لڑ رہے ہیں. یہ عناصر اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں. خارجی عناصر اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. فسادیوں کے بارے میں اسلام کے احکامات بہت واضح ہیں، تاہم ریاست کے سامنے سرنڈر کرنے والے محض رحم کی توقع رکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسلام نے خواتین کو خصوصی حقوق دیے ہیں. اسلام نے ہر حیثیت میں عورت کو حقوق دیے. خارجیوں کو کس نے اختیار دیا کہ وہ خواتین سے حقوق چھین لیں؟ اسلام کے دیے ہوئے حقوق کوئی نہیں چھین سکتا. آرمی چیف نے کہا کہ گمراہ گروہ کو ملک پر اپنے نظریات مسلط نہیں کرنے دیں گے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی طلباء سے خصوصی گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا. آرمی چیف نے گفتگو میں کہا کہ اسلام کی شریعت اور اسلام کی غلط تشریح نہیں کرنے دیں گے. اسلام نے خواتین کو خصوصی حقوق دیے ہیں، ان سے یہ حقوق چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ISPR انٹرنشپ کے شرکاء نے لاہور گیریجن شوٹنگ گیلری کا دورہ کیا. گیلری عمل پر شرکاء کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور تفصیلی بریفنگ دی گئی. طلباء نے مختلف ہتھیار چلانا سیکھے، تیر اندازی اور سکیٹ شوٹنگ سے بھی خوب لطف اندوز ہوئے. شرکاء نے دورے کے انعقاد پر پاک فوج سے اظہار تشکر اور مسرت کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے قلات میں نیویز پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے فائرنگ سے شہید نیویز اہلکار علی نواز کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ نے شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے نیویز اہلکار علی نواز کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں. علی نواز نے فرض کی ادائیگی کے دوران جان قربان کر کے شہادت کا اعلیٰ مرتبہ پایا. وفاقی وزیر داخلہ نے زخمی ہونے والے 2 نیویز اہلکاروں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی. ناظرین، بلا شبہ ہمارے شہداء نے اپنے خون سے آبیاری کر کے وطن عزیز کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے. لانس نائک عمر ظہور بھی ایسے ہی شہیدوں میں شامل ہیں
जिन्होंने फराइज की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। शहीद के लवाहिकीन ने अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते हुए कहा है कि बेटे ने मुल्क के लिए जान कुर्बान की, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मजदूरियां करके बड़ों ने स्कूले भेजा जी, बड़ों ने शौक आई मैं फौज जम्मू जाना, मैं क्या पुत्र भाग गया वो जी उन्हें फौज चले गया। मुल्क की खातर मेरे बेटे जान देती है, वो मैनू नहीं चाहिए, मेरी शान बना देती है। इत्थे भी अगले जान में मेरे बेटे से बड़े अच्छे नसीब आए, छोटी उम्र के मैनू मेरा सिर उच्चा कर दिता है। हर बंदा ही आंदा शहीद अबू। बेटा मेरा बड़ा लेका सारे नाल शेर मेरा बादर आ, बच्चे में सामने बड़े औखे आ, जिसे मेरे सुख दे आए उस मैंने राह छड़ दिया। अल्लाह मियां उन्होंने शहीदां वाली मौत दी, इस गल ते मैनू फखर है। उनका सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो जब छुट्टी आते थे घर में, वो घर के कामों में मेरी हेल्प किया करते थे। उनका ख्याल था कि वो इन्हें पढ़ाएं लिखाएंगे, अजान डॉक्टर बने। मेरी ख्वाहिश भी यही है कि मैं मोहम्मद अजान को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाऊंगी और उसके इस ख्वाब को मुकम्मल किया जाएगा। घर में सबसे बड़ा था, ये सब को समझाता था, हम सब बहन भाइयों में सबसे ये लायक था। मेरे वालिदैन के लिए ये फ़ख्र था, ये मेरे वालिदैन का मान था। जो भी मसले मसाइल घर में या कोई ज़िंदगी में मामला हो जाते थे ना, वो मेरे वालिद और वालदा को हौसला देता था। वो कहता था मैं संभालूंगा जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, आपको कोई ज़िंदगी में मसला परेशानी मैं नहीं आने दूंगा। 6 माह पहले उधर से छुट्टी आया था, इसने मेरी शादी की है, फिर छुट्टी वापस चला गया। 25 दिसंबर को सुबह तकरीबन 11:30 बजे हमें खबर आई है आपका भाई उधर शहीद हो गया है, मुल्क के लिए कुर्बान हो गया, शहीद हो गया। फ़ख्र थे सर बुलंद, लेकिन अब उसकी बहुत कमी महसूस होती है। अभी आपको बताएं कि ISPR इंटर्नशिप के शुरका ने लाहौर गैरिजन शूटिंग गैलरी का दौरा किया। गैलरी आमद पर शुरका का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तलबा ने मुख्तलिफ हथियार चलाना सीखे, तीरंदाजी और स्केट शूटिंग से भी खूब लुत्फानंदोज हुए। शुरका ने दौरे के इनेकार पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर और इजहार मुसर्रत किया। दौरे के हवाले से तलबा का कहना था कि शूटिंग गैलरी का दौरा उनके लिए एक नया तजुर्बा था। ISPR इंटर्नशिप की तरफ से हमें लाहौर गैरिजन शूटिंग रैली लेके आया गया और यहाँ पे मैंने शॉट्स फायर किए हैं, जिनमें से मेरे 3 शॉट्स स्नाइपर के लगे हैं और 2 बहुत मिस हो गए हैं। आज हम गैरिजन शूटिंग गैलरी में आए हुए हैं, जहाँ पे हमें आर्चरी शूटिंग का मौका मिला है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने एक्सप्लोर की हैं। मैं आई हूँ लाहौर गैरिजन शूटिंग गैलरी और यहाँ आके हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और हमने बहुत काफ़ी एक्सपीरियंसेस भी किए हैं। थैंक्स टू ISPR फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। हम यहाँ ISPR की इंटर्नशिप पे आए थे और इन्होंने हमें यहाँ शूटिंग रेंज में मौका दिया है, हम इसके लिए इनके बहुत थैंकफुल हैं। आज हमारा ISPR की तरफ से लाहौर शूटिंग गैलरी में विजिट था, जहाँ पे आके हम सब ने फाइट्स किए हैं, जो कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ का विजिट। शूटिंग रेंज काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, हमें फायर वगैरह भी इन्होंने करने के लिए अलाउ किया, बाकी भी बहुत अच्छा अभी तक तो एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 263 रुपये 95 पैसे फी लीटर होगी। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 155 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। मिट्टी के तेल की नई कीमत 171 रुपये 65 पैसे मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो चुका है। गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने, धरती देखो धड़के, जीतो बागी लड़के। नाज़रीन, खेल में बात करते हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी की। सबसे पहले आपको बताएं कि शायकीन क्रिकेट का जोश उरूज पर है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 3 दिन बाकी हैं। 9 मार्च तक जारी रहने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में होंगे।
क्रिकेट की दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें टाइटल के हुसूल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। इफ्तिताही मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने होंगे। शायकीन चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर देखने के अलावा इवेंट्स के हवाले से लाइव रिपोर्टिंग, खबरों, तज्जियों और तबसरों से पीटीवी न्यूज पर लुत्फानंदोज हो सकेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तकरीब आज लाहौर में होगी। तकरीब में आईसीसी और पीसीबी के अहम ओहदेदारान शरीक होंगे, जबकि क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। गुलूकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का स्पेशल तराना भी पेश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच बुध को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का हाई वोल्टेज मुकाबला 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में होगा। गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने, धरती देखो धड़के, जीतो बाजी लड़के। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई में होने वाले 4 मैचेस के लिए इजाफी टिकट जारी किए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में शेड्यूल 3 ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज 1 बजे से फरोख्त के लिए पेश किए जा रहे हैं। दुबई में पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश और भारत के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी और न्यूजीलैंड और भारत 2 मार्च को मद्दे मुकाबिल होंगे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 4 मार्च को होने वाले सेमीफाइनल 1 के लिए भी महदूद टिकट दस्तयाब होंगे। टिकट ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के टिकट दुबई में पहले सेमीफाइनल के बाद दस्तयाब होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। और नाजरीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शिरकत के लिए भारतीय क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई है। भारतीय टीम मुंबई से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। शायकीन क्रिकेट ने भारतीय टीम का इस्तकबाल किया। भारतीय क्रिकेट टीम बगैर जाती अमले के दुबई पहुंची है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में खिलाड़ियों के जाती शेफ और हेयर ड्रेसर साथ ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस फैसले के तहत भारतीय खिलाड़ियों को इवेंट के दौरान दस्तयाब सहूलियात पर इन्हिसार करना होगा। भारतीय खिलाड़ी आज दोपहर आईसीसी अकेडमी में प्रैक्टिस करेंगे। कुछ प्लेयर्स होटल में ही फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में खेलेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर पीटीवी स्पोर्ट्स ला रहा है ग्रैंड ट्रांसमिशन, जिसमें क्रिकेट की दुनिया के नामवर तज्जियाकारों देंगे अपनी माहिराना राय और करेंगे मैच पर तबसरे। एक्सपर्ट पैनल में साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर, बासित खान, शोएब मलिक और सना मीर शामिल हैं। ज़ैनब अब्बास और सिकंदर बख्त मेजबानी के फराइज अंजाम देंगे। Hi everyone, this is Zainab Abbas and you can watch all the games and analysis of the ICC Champions Trophy only on PTV Sports. Watch the ICC Champions Trophy matches and analysis all on PTV Sports. Game on hai. You can watch all the matches of ICC Champions Trophy and in-depth analysis only on PTV Sports. Game on hai. चैंपियंस ट्रॉफी की तफसीलात नाजरीन आपने जानी। अब आपको लिए चलते हैं रिजवान और हुमा की जानिब। शुक्रिया समी। नाज़रीन, खबरनामे में यहाँ शामिल करेंगे मशरक़ वस्ता की सूरत हाल। हमास की जानिब से मज़ीद 3 इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल ने भी ओफर जेल से 369 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। रिहा होने वाले फ़लस्तीनियों में उम्र कैद की 36 कैदी भी शामिल हैं। 333 फ़लस्तीनी कैदियों का ताल्लुक गजा से है। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले 4 फ़लस्तीनी कैदियों को फौरी तौर पर मकबूजा मगरबी किनारे के एक अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानब जंगबंदी माहिरे की इसराइली फ़ौज ने शाम के जनूब मगरबी देहात में पेशकदमी की। फ़लस्तीन की न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान गजा की पट्टी के अस्पतालों में 25 शोहदा के जसद खाकी लाए गए, जिनको तबाहशुदा इमारतों के मलबे से निकाला गया है। गुज़िश्ता 15 माह जारी इसराइली जारहियत से शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 48,264 हो गई, जबकि 1,11,688 ज़ख्मी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो मशरक़ वस्ता के दौरे पर इसराइल पहुँच गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा सदर ट्रंप की गजा से फ़लस्तीनियों को बेघर कर देने की तजवीज़ के बाद हो रहा है।
वाज़ेह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमास के लिए दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई है। भारत के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। लुकमा अजल बनने वालों में 3 बच्चे और 10 खवातीन भी शामिल हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हजारों की तादाद में हिंदू यात्री सालाना मजहबी त्यौहार महाकुंभ मेले में शिरकत के लिए पहले से भरी ट्रेनों में सवार होने की कोशिश कर रहे थे। वजारत रेलवे के तर्जुमान ने बताया कि प्रयागराज एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस ट्रेन के लिए सैकड़ों मुसाफिर आए और सबने सोचा कि मेले के लिए ये आखिरी ट्रेन है, इसलिए सबने उसमें सवार होने की कोशिश की। हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए काला सतह की कमेटी तश्कील दे दी है। अस्पताल की जानिब से अभी तक 18 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़या हुकूमती बदइंतज़ामी के बायस पेश आया और अमरीका से गैर कानूनी तारकीन वतन की भारत वापसी का सिलसिला जारी है। दूसरा अमरीकी फौजी जहाज मजीद 119 भारतीय शहरियों को लेकर अमृतसर पहुंच गया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने अमरीका से बेदखल होने वाले अफराद का इस्तकबाल किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमरीका का जंगी जहाज 119 अफराद के साथ अमृतसर के गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। बेदखल होने वाले अफराद में 67 भारतीय पंजाब के बाशिंदे शामिल हैं। एक बार फिर भारत के गैर कानूनी तारकीन वतन को हथकड़ियों और बेड़ियों में वापस भेजा गया है। इससे कबल भी 104 भारतीय शहरियों को अमरीका से हथकड़ियां लगाकर वापस भेजा गया था। चेयरमैन गिलगित बल्तिस्तान सरमायाकारी बोर्ड फताउल्लाह खान की क़यादत में वफ़द ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। फताउल्लाह खान ने आला हुकाम से गुफ्तगू में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान सरमायाकारी और सरमायाकारों के लिए मौजूद खित्ता है। सूबे में सरमायाकारी के मौक़े को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान सरमायाकारी बोर्ड सरमायाकारों के लिए जल्द 1 विंडो ऑपरेशंस की सहूलत फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि सयाहत, माही परवरी, बिजली और ज़राअत के शोबों में वसी पैमाने पर सरमायाकारी के मौक़े से सरमायाकार फ़ायदा उठा सकेंगे। इस मौके पर बोर्ड के डायरेक्टर जनरल शाहिद अली ने गिलगित बल्तिस्तान खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम और इक़दामात के हवाले से शुरका को आगाह किया। इस दौरान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हुक्काम ने गिलगित बल्तिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। रुकन कौमी असम्बली और कन्वीनर ज़िले राबता कमेटी अटक शेख आफ्ताब अहमद कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की के लिए कोशा है। क़यादत के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। अटक में तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर इलाके में मनसूबों का जाल बिछा दिया है। तरक्याती कामों के मयार पर कोई समझौता न किया जाए, तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत पर मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इक़दामात की बदौलत अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम हुई हैं। आवाम की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए पंजाब में 70 से ज़्यादा नए मनसूबे शुरू किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून हमेशा की तरह इस मरतबा भी मुल्क भर में तमाम तरक्याती मनसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खुसूसी प्रोग्राम के तहत जिला शेखुपुरा में भी अक़लियती बिरादरी के मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया गया। शेखुपुरा के ज़िला काउंसिल हॉल में मुनक़दा तकरीब में इब्तदाई तौर पर 100 मसीही ख़ानदानों में माइनॉरिटी कार्ड्स तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए अरकान पंजाब असम्बली और दीगर मुक़र्ररीन का कहना था कि माइनॉरिटी कार्ड का इजरा फलाही रियासत के क़याम की जानिब एक तारीखी कदम है, जिससे पहले मरहले में सूबे के 50,000 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे, जिन्हें सहमाही 10,500 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से देही ख़वातीन के लिए भी तारीख साज मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में 2 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब की 11,000 मुतलका और बेवा ख़वातीन को मुफ्त माल मवेशियों की फराहमी जारी है। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के देही ख़वातीन के लिए लाइफ स्टॉक असासे जात प्रोग्राम के तहत जानवरों की तकसीम का अमल जारी है, जिसके तहत पहले मरले में ज़िला लोधरा की 401 ख़वातीन में मुफ्त जानवर तकसीम किए गए हैं। इस हवाले से ज़िला लोधरा की 401 मुस्तहिक़ ख़वातीन में लाइफ स्टॉक के असासे जात तकसीम करने की तकरीब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स लोधरा में हुई। इस तकरीब में मुंतखब नुमाइंदों रुकन सूबाई असम्बली ज़ुबैर खान बलोच, साबका रुकन सूबाई असम्बली पीर सैयद रफ़ीउद्दीन शाह, जवार हुसैन वड़ैच, जबकि सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साके बतील ने मुतलका और बेवा ख़वातीन में जानवर तकसीम किए। इससे हमें बहुत अच्छा मौका मिला है। ये जानवर जो हमें दे रही हैं, इससे हमारा गुजर बसर बहुत अच्छा हो जाएगा। इनकी इस इक़दामात पे जो है हमें बहुत खुशी है और दिल से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ई काम दे उत्ते जेड़ा जो वज़ीर आला साहबा मेहरबानी कर दे पंजाब दी ख़वातीन ये सिलसिला शुरू कीते बेवा ख़वातीन को जानवर देवन दा
ਉਹਨਾਂ को खिराज तहसीन पेश करे ने ते पंजाब हुकूमत दे इन्हां इकदामात नाल इंशाअल्लाह अजीज बेरोज़गारी दा खात्मा थी सी। जनूबी पंजाब के 11 अजला की खवातीन को जानवर तकसीम किए जा रहे हैं, जिससे एक तरफ मुस्तहिक खवातीन की मदद होगी तो दूसरी तरफ दूध और गोश्त की पैदावार में भी इजाफा होगा। बेवा और तलाक याफ्ता खवातीन में लाइफ स्टॉक असासे जात की तकसीम का प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब का खवातीन की खुद मुख्तारी का मंसूबा है, जिसका मकसद नादार खवातीन को अपना रोज़गार कमाने के काबिल बनाकर बाइख्तियार बनाना है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत दीगर शहरों की तरह रहीम यार खान में भी मॉडल रेडी बाजार कायम किया गया, जहां आवाम के लिए ताज़ा सब्जियां और फल DC रेट पर दस्तयाब हैं। रेडी बाजार के कायम होने से शहर से तजावुजात का खात्मा हुआ है और ट्रैफिक की रवानी में भी बेहतरी आई है। रिपोर्ट करेंगे अशफाक अहमद। पंजाब की हुकूमत ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत बाज़ारों से तजावुज़ात के खात्मे के लिए बाज़ारों में लगने वाली रेहड़ियों के लिए अलग से एक बाज़ार कायम किया है, जहां पर आवाम को रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ें सरकारी नरखों पर दस्तयाब हैं, जिससे रहीम यार खान की आवाम को मसनूई महंगाई से निजात मिली है। रहीम यार खान की चारों तहसीलों में कायम रेहड़ी बाज़ारों में रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ें, सब्जियाँ और फल इंतहाई सस्ते दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अब आसानी हो गई है, पहले बहुत रश होता था, बहुत यानी कि मसला बढ़ता था लेने के लिए चीज़ें। अब जो है ये हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे बना दिए गए हैं, खुले बाजार हैं, ईजी हो के इंसान सौदा ले सकता है। गवर्नमेंट का ਅਸੀਂ बड़ा शुक्रगुजार है ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਦੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ, ਗਾਹਕ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ अपना सौदा लैके चला जाता। हुण ना तो रोड ब्लॉक होता है। भाईजान गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया होया, सानू एक साइड से बाजार दिता होया वा, माशाल्लाह रोजगार भी अच्छा लगा होया वा। मेन रोड से तजावुज़ात का खात्मा हुआ है, जिससे ट्रैफिक की रवानी में आसानी आई है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हर वक्त रेहड़ी बाज़ारों में मौजूद है। शहरियों की बड़ी तादाद रेहड़ी बाज़ार से ख़रीदारी कर रही है। रेहड़ी बाज़ारों का मकसद शहरों से तजावुज़ात के खात्मे के साथ आवाम को मसनूई महंगाई से रिलीफ फराहम करना है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ज़राअत का शोबा भी मुतासिर हुआ है, फसलों की पैदावार में कमी हुई है। हालिया खुश्क साली और कम बारिशों के असरात गंदम की फसल पर भी पड़े हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं MLC से चौधरी हसन महमूद। इस साल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के किसान कार्ड मनसूबे की बदौलत मेलसी में हदफ से ज़ायद 1,81,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई है। ताहम मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सर्दी का दौरानिया कम रहने, बारिशें न होने, खुश्क साली और कबल अज़ वक्त बढ़ते दर्जा हरारत से गंदम की फसल ज़्यादा झाड़ बनाने की बजाय बढ़ोतरी की तरफ माइल है। इस साल जो है मौसम गर्म जल्दी हो गया है, धुंध भी बहुत कम आई है, सर्दी भी कम आई है, गंदम जो है रुक गई है, गंदम ने सीटा जल्दी निकाल लिया है, दूसरे अखराजात भी मौसम की वजह से ज़्यादा बढ़ गए हैं। दफ़ा ज़रा मौसम बहुत सख्त हो गया है, धुंध नहीं पई, बारिशें कोई नहीं आई, कणक कुराड़ की दी खड़ोती है, नहीं सर्दी पई, तो ये वजह तो औसत पे बड़ा असर पवना है। गंदम गर्म होते मौसम से दबाव में है, जैसे गंदम पीली हो रही है और कमज़ोर होकर जल्द सीटा निकाल रही है। महकमा ज़राअत का अमला इस सूरत हाल में किसानों की मुसलसल रहनुमाई कर रहा है। दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। हमने गोब की हालत से पहले इसकी तमाम खुराकी ज़रूरियात पूरी करनी है। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर लें तो वो भी फ़ायदेमंद हो सकता है। काश्तकार कम वक्फे से पानी लगाकर गंदम को नरम रखें, नामियाती मादे, मुतवाज़न खादें और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें तो गंदम को गर्म मौसम के मनफी असरात से महफूज रखकर पैदावारी हदफ हासिल करना मुमकिन है। चौधरी हसन महमूद, PTV न्यूज़, मेलसी। शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से इक़दामात। पसरूर में भी मकामी इंतज़ामिया की जानिब से PSER के तहत रजिस्ट्रेशन अमल जारी है। रिपोर्ट करेंगे राना कैसर हयात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर पंजाब भर की तरह पसरूर में भी निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए बल्दिया ऑफिस पसरूर में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। बल्दिया ऑफिस में मुस्तहिक ख़ानदानों की रजिस्ट्रेशन के लिए 8 डेस्क कायम किए गए हैं, जहां पर शहरियों की रजिस्ट्रेशन का अमल किया जा रहा है। पंजाब सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री पर हमारे इधर 8 हमने डेस्क बनाए हुए हैं, जहाँ पे हम 8 लोग दिन रात जो मुस्तहिक लोग हैं, डिज़र्विंग हैं, उनकी एंट्रीज़ कर रहे हैं। 8,000 के करीब हम जो है मुस्तहिक ख़ानदान उनको पसरूर शहर में रजिस्टर कर चुके हैं। मरियम नवाज ने जो रमज़ान पैकेज ये शुरू किया है, मुस्तहिक लोगों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम है और यहाँ पर अमला बहुत अच्छा इखलाक से बात करते हैं। पसरूर भर में चिविंडा, किंगरा, बडियाना समेत 34 मुकामात पर रजिस्ट्रेशन कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ पर अब तक 32,000 के करीब खानदानों की रजिस्ट्रेशन अमल में लाई जा चुकी है।
पंजाब हुकूमत के इस रिलीफ रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम से जहां शहरी इलाकों के ज़रूरतमंद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे, वहीं पर पंजाब के दूर दराज के सरहदी इलाका के अफराद की जानब से भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इस इकदाम को सराहा गया है। राना कैसर हयाद, PTV न्यूज़, पसरूर। रहनुमा मुस्लिम लीग और रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं कि हुकूमती इक़दामात से खेल के मैदान आबाद हो गए हैं। हमारा पैगाम है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। सेहतमंद कोहिस्तान के उन्वान से हैदराबाद में टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खेलदास ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भरपूर इंतजाम किए हैं। इवेंट के इनेकाद से रौनकें दुबाला हो गई हैं। पाकिस्तान के अवाम ये मैसेज दे रही है कि देखें हम किस तरह खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, किस तरह सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ जा रहे हैं। जो ख्वाब देख रहे थे कि ये मुल्क जो है श्रीलंका बन जाएगा, ये दिवालिया हो जाएंगे, वो जो साजिशें थी, वो जो इंतशार था, वो अब कैद है। अब खुशहाली और अमन जो है वो बहाल है। हम सब मिलके पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्द रहेगा। तहम गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आज मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए इजाजत। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ।